Hello everyone, very good evening to all of you and the Lolicious welcome you all. Today we will be explaining second task of your virtual internship which is a legal drafting under section 138 of Negotiable Instrument Act. Now with due respect I hand over mic to Shubham sir to explain the further details of your second task. Good evening, everyone. So, I hope that you all have completed your first task. So, which is a very good sign that you all are listening and you all are doing your work properly. So, as you all are aware that we are moving to the second task, and the second task is about drafting a complaint under Section 138 of the Negotiable Instrument Act. I don't know how many of you have done research about 138 NI Act, but there are you need to know two three things basically. So NI Act is Negotiable Instrument Act. It is a law relating to the banking domain. Primarily 138 deals with dishonor of check. Sometimes what happens is that we give money in the form of check to some other person. Say for example, I am giving a check of 1 lakh rupees to my mother. Whereas in my bank account, I have 99,999 rupees. I do not have exact 1 lakh rupees. As a result, what happens? As a result that I do not have 1 lakh in my bank account, the check that I've given to my mother, that gets bounced because the bank is unable to clear the payment which my mother has demanded in the form of check that she has got from me. And why so? Because I have given her a check of 1 lakh rupees, but my bank account contains 99,999 rupees. There is 1 rupee deficit. This deficit and not being able to draw the money by the drawee, the one to whom the check is given is known as drawee. So my mother here is a drawee. She is unable to draw the check. As a result, she has a right to file a complaint against me. Now the thing is that if she wish, she can move to the court. लेकिन क्यों जाना है कोर्ट कचहरी में when the judiciary is stressing on out of court settlement? तब what we do before filing a case, आज कुछ हुआ, कल जाके मैं वो केस ठोक दूं. It doesn't look good because the court will question you, have you tried to solve it amicably? It is different for crimes. For crimes, you do not have the scope for amicable settlement. The only option is filing an FIR and getting the case started. But these civil matters, the court also takes into account that whether we have taken steps to amicably resolve or not. So case होने से पहले क्या किया जाता है? एक नोटिस भेजा जाता है. अब मेरे मम्मी को मैंने दिया 1 लाख रुपया, मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं 99,999 रुपीस, 1 रुपया कम है. उसके चक्कर में जो चेक मैंने दिया वो चेक बाउंस हो चुका है. अब मेरे मम्मी इधर तो कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं या फिर मेरे को एक लीगल नोटिस भेज सकता है अंडर सेक्शन 138. वो बताएंगे अब वो नोटिस में क्या लिखना है. यू हैव गॉट इट, यू हैव गॉट द सैंपल, आई होप यू हैव सीन इट. पहले ही देखो, पहले तुमको तो हेडिंग देना पड़ेगा, नोटिस, किस सेक्शन के तहत तुम नोटिस दे रहे हो. पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है. सो यू विल मेंशन दैट. उसके बाद एडवोकेट का नाम आ जाता है, नेम ऑफ योर पीपल. फिर इज लाइक योर नंबर. उसके बाद डेटेड, तुम किसको चिट्ठी दे रहे हो, टू whom you are writing the letter. You write that person's name, address, then write the subject, and then you follow. Now, drafting, whether we are drafting argument, whether we are drafting a notice, whatever we are doing, drafting is basically storytelling. Drafting कुछ भी नहीं है सिवाय storytelling का. So the more you are good in English, the more you know how to narrate your piece, the more you know how to play with the words, the more you will be successful as a lawyer.
हमारे प्रोफेशन में एक ही फंडा है, द मोर यू आर गुड इन इंग्लिश, द मोर you have hold of stock of words, the more you are able to articulate yourself to present your case in a very lucid yet very compelling manner is what fetches you brownie point. So you write the story. So first of all you write ki, the date sequentially, ki when I have taken the money, when how did my mother has paid me money when I've taken it from her. The next point can be when was the interaction saying that I will return the money. The next point would be how am I giving the money, whether I'm giving it at one go, at lump sum, or whether I'm giving it in parts, on what dates I'm giving, to which bank account I'm giving, from which bank account the amount will be deducted. So you write everything in the notice. Then my mother here is the victim. So what she will do, then she will write that basis the check that you have given on so and so date, I have deposited in the bank to get it encashed. Upon depositing, it was said by the bank that the bank account does not hold sufficient balance. चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, चाहे वो 100 रुपया ही क्यों ना हो, चाहे वो 50, 60, 70, 80 हजार रुपया ही क्यों ना हो. And then at last what you will do, you will claim remedy. कि ये जो 1 रुपया ना होने की वजह से जो मेरे मम्मी को ह्यूमिलिएशन फेस करने पड़ा बैंक में, जो उनका ट्रॉमा हुआ, जो उनका स्ट्रेस गया, इन सब चीजों के लिए वी आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन. अब मेरे मम्मी को क्या चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए. शी विल राइट दैट प्लस शी विल क्लेम इंटरेस्ट. प्लस हम जब कुछ क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो व्हाट विल वी डू, we will try to give maximum advantage to our clients. तो suppose 1 लाख है, उसके ऊपर she is asking me 18% interest for the money for the time period that I have not repaid her the money. हो गया. Over the top ये जो mental harassment हो रहा है, ये mental harassment के लिए she can claim any amount of money. There is no fixed amount. Ki na, I can claim only 30,000, I can claim 40,000. It's not like that. I can claim any number of amount that I wish to get it compensated. वो अलग बात है कि मैं जो भी नंबर लिख के दूं वो और इसको कहा जाता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. क्योंकि ये जो मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, जिसके चलते उनको सफर करना पड़ रहा है, वो तो लिक्विडेटेड नहीं है. वो तो कहीं पे प्री डिसाइडेड नहीं है कि अगर मैं इस समय के अंदर ये रुपया देने के लिए फेल कर जाता हूं तो मैं तुमको ये मेंटल हैरेसमेंट के लिए ये पैसा दूंगा ना. नो मैन, कहीं पे ये लिखा हुआ नहीं है. सो जब ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, देन व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज व्हेन वी आर क्लेमिंग money for mental harassment, trauma, torture, etc. This is called unliquidated damages. तो एक नोटिस में हमको जो फॉर्मेट तुम लोगों को दिया गया है उसी फॉर्मेट में बनाना है, बट कैसे बनाना है वो स्टोरी यू विल राइट बाय योरसेल्फ. सो नाउ दैट इज वेयर ड्राफ्टिंग लाइज, दैट इज वेयर द आर्ट ऑफ ड्राफ्टिंग लाइज ओवर देयर. सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? Sir, can you explain again? I'm sorry? Sir, can you explain once again? Like section 138 of Negotiable Instrument Act. No, the drafting method. Drafting method? Yes. You have already got a PDF, right? If you see the PDF properly, so what you will do at the beginning, there would be your name, your contact details, then comes the date. After, below the date is what you will write to whom you are writing the letter. जिसको तुम ये नोटिस दे रहे हो उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा. फिर सब्जेक्ट लिख दो वहां पे जो लिखा हुआ है जैसे पीडीएफ पे. फिर यू स्टार्ट नरेटिंग द स्टोरी. जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, पूरा घटना
वो घटना को स्टोरी के तहत लिखना पड़ेगा. बट देयर इज अ कैच. when we are writing when we are drafting in the form of story, do not write like class 11 12 का story writing वाला. In legal drafting there is a catch. Every sentence starts, every new point, the beginning of the sentence starts with the word that. ये नोटिस अगर तुम लोग अच्छे से फॉलो किए होगे तो तुम लोग देखोगे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 हर जगह पे सेंटेंस शुरू हो रहा है दैट से. नाउ दिस इज अ कस्टम ऑफ ड्राफ्टिंग. दिस इज अ रूल ऑफ ड्राफ्टिंग. बिकॉज when you are addressing in the court of law, you cannot say that I am of the opinion. You can argue, but you cannot write because you are addressing to the lordships. So when you are writing the word that in front of every sentence, at the beginning of every sentence, so you are logically referring that your point number 4 has interconnection with point number 3. When you are starting point number 3 with that, you are showing the interconnection of point number 3 with point number 2. आप जितने भी पॉइंट्स लिखोगे, यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा हुआ है. आप जब ड्राफ्टिंग करोगे तो आपको आप देखेंगे कि यू विल हैव टू राइट 150 160 170 200 पैराग्राफ. हर पैराग्राफ दैट से ही शुरू होगा. दिस इज अ कस्टम ऑफ ड्राफ्टिंग. दिस इज अ रूल ऑफ ड्राफ्टिंग. यू कैन नॉट अवॉइड इट. यू कैन नॉट स्टार्ट सेंटेंस इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी नहीं. दैट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. I hope it is clear now to everyone. Yes. Yes, sir. Okay, so then your today's task will be very, you are very concerned about it. So please ensure that you go through section 138 अच्छे से. फिर you will draft a notice under section 138. जो दिया गया है पीडीएफ में वो रेफरेंस के लिए ही है. Do not write, do not draft basis that. तुम लोग ड्राफ्ट करो. इमेजिन करो कि तुम लोगों के घर से किसी ने पैसा लिया हुआ है. बहुत कॉम्प्लिकेशन है. उन्होंने बोला कि वो 10 तारीख को देंगे. जून का 10 तारीख चला गया. उन लोगों के साथ तुम लोगों का कम्युनिकेशन हुआ 15th को. फिर उन्होंने बोला 20th को देंगे. 20th को भी नहीं दिया. फिर 30 तारीख को यू हैव कॉल, दे हैव नॉट रिसीव्ड द कॉल. फिर जुलाई के 2 तारीख को तुम लोगों ने फिर से उन लोगों के घर में जाके पूछा. तब जाके वो बोला कि हम 5 तारीख को देंगे. 7 तारीख को वो चेक दे रहा है. 8 तारीख को तुम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो. आज 9 तारीख है. आज बैंक बोलता है कि ये हम एनकैश नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है. तो क्या हुआ? चेक बाउंस हुआ, डिसऑनर ऑफ चेक हुआ. अब यही सीक्वेंस को याद रखते हुए ड्राफ्ट अ नोटिस टू दैट कंसर्न पर्सन अंडर सेक्शन 138. समझ में आया क्या करना पड़ेगा ये टास्क के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. You sir, you can take it from here. I am done with my explanation. Okay, if anyone have any doubt, then you can clear it out. हाँ, आपका वाटर मार्क रहेगा लॉलिशियस का, जो कि आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया गया है. अगर नहीं तो अभी ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा. वाटर मार्क रहेगा उसके ऊपर ही, जैसे कि इस पीडीएफ में जो आपको रेफरेंस के लिए दिखाया गया है, जिस तरीके से उसमें वाटर मार्क है लॉलिशियस का, इसी तरीके से जो आप बनाओगे, जिसमें ड्राफ्ट करोगे, उधर भी वो वाटर मार्क रहेगा. और आपको ये ड्राफ्टिंग करने के बाद अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करना होगा और लॉलिशियस को टैग करना होगा. ओके. ओके मैम, लिंक्डइन पे पोस्ट करना मैंडेटरी है क्या? यस, आप लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगी और उसके बाद लॉलिशियस को टैग करेंगी. जब आप पोस्ट करोगे उसमें ही लॉलिशियस को आप टैग करेंगे. ओके
और प्रॉब्लम अभी शेयर होगी ग्रुप पे या प्रॉब्लम हमें खुद से क्रिएट करनी है? You have to create ना. ओके. अभी आप लोगों को एक सिचुएशन दी जाएगी, उस पर आपको ड्राफ्ट करना होगा और सारी चीजें आपको उसमें दी गई हैं कि क्या है, कैसे क्या है, और आपको सारा फॉर्मेट भी दिया जाएगा। ये सारी चीजें देख करके आपको उस पोस्ट को इस ड्राफ्ट करना होगा। जैसे कि आप जिसका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है वो कहीं किसी अदर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसका लिंक आप हमें ड्राफ्ट के पीडीएफ के साथ ईमेल करिएगा, जो लॉलिसियस के अभी आपको एक ईमेल प्रोवाइड किया जाएगा उस पर। और सारी बातें जो आपको बताई जा रही हैं ये आप एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि जैसा कि अभी सर ने भी बताया है और कुछ लोग नहीं समझ पाए तो उनके लिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जो एडवोकेट हैं आप किसी अपने क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं उसके बिहाफ पर किसको सर्व कर रहे हैं वो लिखिए, और फिर दैट से स्टार्ट करना है जैसा कि सर ने भी बताया था। दैट का मतलब क्योंकि आपको ये जो लीगल नोटिस लिख रहे हैं थर्ड पार्टी लिख रहे हैं, एज अ थर्ड पार्टी लिख रहे हैं, यानी कि दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, आप थर्ड पार्टी हैं और आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पर लिख रहे हैं। क्या हुआ है पहले क्लाइंट के बारे में लिखिए, क्लाइंट क्या काम करता है, क्या हुआ है, कितना अमाउंट है, ये सारी चीजें मेंशन करना है आपको। और इस पोस्ट को आपको अपने लिंक्डइन पर भी पोस्ट करना होगा और उसका लिंक अपने पीडीएफ के साथ हमें ईमेल करिएगा। सर्टिफिकेट बनने के टाइम पर ये सारे टास्क के इवैल्यूएशन लिंक के थ्रू वेरीफाई किए जाएंगे और उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर फिर भी किसी को कोई क्वेरी आती है तो दिए गए ईमेल पर भी आप मैसेज करिए या फिर व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। Hello. Hello. Am I audible, sir? यस Sir, we have to draft just 15 days notice, not a complaint under section 142 clause A of the Act of 1881, right? आपको बस एक लीगल नोटिस सर्व करना है अभी, क्योंकि Okay, अभी okay. आप ड्राफ्ट नहीं भर सबमिट कर रहे हैं, कोई पिटीशन नहीं डाल रहे हैं। एज अ ये बियॉन्ड द कोर्ट है, यानी कि आप कोर्ट के बाहर सारा काम कर रहे हैं। अभी अगर बाहर ही मैटर सॉल्व हो जा रहा है, डिस्प्यूट कोर्ट नहीं पहुंच रहा है, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए ये लीगल नोटिस सर्व की जाती है। Okay, sir. Okay, sir. I get it. And kindly mention it in our group in writing if possible, sir. Because these technical things, actually, I'm not that competent in Yes, technicality. wait, all the things which were told in this meeting, which were अभी थोड़ी देर में आपको ग्रुप पर मेंशन भेज दिया जाएगा, सारी चीजें पीडीएफ, वाटरमार्क, हाउ टू ऐड वाटरमार्क एंड टास्क एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन। लास्ट डेट फॉर सबमिशन सैटरडे ही है, मे बी जो टास्क आपको अभी ग्रुप पर आएगा उसमें शायद कल या परसों की डेट है, तो उससे आपको कोई भी पैनिक नहीं होना है। लास्ट डेट सैटरडे ही रहेगी टास्क सबमिशन की। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. वेलकम। किसी को कोई और क्वेरी है तो कर सकता, नहीं तो फिर अब मीटिंग एंड करते हैं और सारी चीजें आपका जो टास्क है, प्रॉब्लम है, वो ग्रुप पर सेंड कर दी जाएंगे अभी विद इन 5 मिनट। सर इस इंटर्नशिप में टोटल कितने टास्क रहेंगे और क्या हर टास्क की डेडलाइन सिर्फ 3 दिन तक मिलेगी? ये पूछ रहा सैटरडे था। लास्ट डे रहेगा आपका। और वेंसडे को मीटिंग हुआ करेगी? वेडनेसडे या फिर मंडे या ट्यूसडे, इन दी वेडनेसडे से पहले ही हो जाएगी मीटिंग आपकी। ऑल राइट। हाँ, और सारे टास्क ड्राफ्टिंग के ही हैं अब। तो टोटल कितने टास्क रहेंगे? 3 टास्क हैं, इसको मिलाकर के 3 टास्क, यानी कि ये आपका सेकंड टास्क है। अभी टास्क 3 एंड टास्क 4 रह गया है आपका ड्राफ्टिंग का। ओके ओके ओके। एंड वेबिनार्स भी हैं। लास्ट वेबिनार एक्चुअली रीशेड्यूल इसलिए हुई, कीनोट स्पीकर कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से रीशेड्यूल कर दी गई थी। तो बेसिकली 4 हम लोग को ड्राफ्ट करने हैं और एक वेबिनार लेना है। 3 ड्राफ्टिंग है, एक लीगल वीडियो आपने भेज दिया है और ओके ओके ओके, आपके गॉट इट गॉट इट। 4 वेबिनार हैं। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। और जो लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं बाय चांस कोई भी वेबिनार, तो वो हमारे लॉलिसियस के यूट्यूब पर जाकर के विजिट कर ले, वहां वो देख ले और हमें स्क्रीनशॉट ईमेल पर भेज दे कि मैंने यहाँ पर ये चेक किया है, पूरा अटेंड किया है। और फिर वो, क्योंकि ये सारी चीजें टास्क सर्टिफिकेट के टाइम पर इवेल्युएट किया जाएगा, इवोल्यूशन होगा, तभी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, बाकी अब मीटिंग एंड करिए यूसरा। Okay, thank you so much everyone for joining this meeting. If anyone have any doubt, then clear it out, and we will send all your samples and situations in your groups. So thank you so much everyone. You can leave the meeting now.